Hello students, how are you all? I'm sure you all are fine and taking good care of yourself. So children, let's begin with our next chapter, which is modals. Modals or modal auxiliary are verbs which express the mood of the speaker. Modals are used to express permission, possibility, ability, obligation, suggestion, promise, wish, dare, prohibition, intention, necessity, request and duty. Points to remember. Modals are always followed by main verb as they cannot stand on their own in a sentence. Example, he must follow traffic rules. She may come to our home tomorrow. Modals are not affected by change in person, first person, second person, third person, or the numbers, singular, plural of the subject. Example, he may come, singular, they may come, plural, I can swim, first person, you can swim, second person, she can swim, third person. It is important that the main verb after modal must be in the root form. Present participle or past participle form of a verb is never used with a modal. मॉडल के बारे में जान लेते हैं बच्चों, या फिर मॉडल ऑक्सिलरी भी इन्हें कहते हैं। ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि आपके मूड को, किसी स्पीकर कहने वाले के मूड को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ये आपकी परमिशन को, एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को दर्शाते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर, मतलब ध्यान देने वाली बात है, मॉडल्स जो होते हैं ये हमेशा मेन वर्ब को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये खुद से स्टैंड नहीं करते किसी भी सेंटेंस में। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए गए हैं। मॉडल्स जो होते हैं ये किसी भी पर्सन के चेंज होने से अफेक्ट नहीं करते, चाहे फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और या तो नंबर्स। ठीक है, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, वो एज इट इज़ ही रहते हैं, जैसे आपको यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में बताया गया है। इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपके मेन वर्ब्स होते हैं वो आपके मॉडल के बाद में आते हैं, और ये किस में होते हैं, रूट फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल शोज द मॉडल दैट एक्सप्रेस एबिलिटी। एबिलिटी, कैन, कुड, be able to indicates ability to do something. It means to be able to do, be capable of, know how to. Example, he can write with both hands. Ability to use both hands for writing. It shows that one had capacity to climb trees in young age. Suggest ability in the past. Example, he could climb trees when he was young. Indicates ability to do something which is more possible than can. Example, he was able to write with both hands. It shows that he actually wrote with both hands. Can is used for the present tense, could is used for the past tense, be able to is used for all tense form. Example, he was able to run many miles a few years ago. Past, he is able to sing and compose a song. Present, she will be able to draw sketch of building by night. Future, अब बच्चों यहाँ पे हम एबिलिटी, अगर हम एबिलिटी को दर्शा रहे हैं तो हम कैसे उसे दर्शाते हैं, कैन, कुड, बी एबल टू की फॉर्म में। ठीक है, कोई चीज़ या कोई इंसान कोई काम कर सकता है, या वो कर सकता था, या वो कर सकता है, तो ये हम दिखाते हैं कैन, कुड, बी एबल टू के थ्रू। बच्चों यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। The following table shows the modals that express obligation, advice and suggestion. Obligation, advice, suggestion. Ability, should, must, ought to. Used to make a suggestion or to give an advice. Example, you should consult your doctor once a month. Advice. Should we call the plumber as your tap is on leakage? Suggestion. Must, suggest a strong obligation. Example, you must help your friend in need. Suggest compulsion and desire of the speaker. Example, you must submit your legal documents before applying for passport. You must complete your work now. Suggest necessity. Example, the government must ensure that people might not damage historical monuments. Ought to conveys a sense of moral duty. Example, you ought to plant trees to save the environment. Moral duties. Note, shall we, shall I are also used to make suggestions. Example, shall I help you to move your luggage inside the cabin. अब बच्चों जान लेते हैं ऑब्लिगेशन, एडवाइस एंड सजेशन के बारे में। ठीक है, इनकी क्या एबिलिटी होती है। शुड, मस्ट, आउट टू, ये हम सजेस्ट करने के लिए, एडवाइस करने के लिए या ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ करते हैं।
ठीक है। और इस तरह से ये एग्जाम्पल में मतलब आपके सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर वंस अ मंथ, तुम्हें अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो आप ये क्या कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो सामने वाले को। कभी कभी आप स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन भी यूज़ करते हो, एग्जाम्पल यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड इन नीड, तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, तो आप उसको ऑब्लाइज कर रहे हो। आउट टू कन्वेज अ सेंस ऑफ मॉरल ड्यूटी, ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो। तो इससे रिलेटेड बच्चों आपको यहाँ पे छोटी एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। द टेबल शोज द मॉडल्स दैट आस्क फॉर एन एक्सप्रेस परमिशन, परमिशन मे, कैन, कुड, suggest permission which is formal in nature and polite. Example, may borrow your pen, you may come in. Suggest permission which is less formal than may, can is informal. Example, can I switch off the TV? Suggest permission in the past. Example, he told me I could leave early, more polite than may. Example, sir, could you grant me leave on Saturday? अब बच्चों यहाँ पे जब हम परमिशन लेते हैं, जैसे आपको क्लासरूम में परमिशन लेनी होती है टीचर की, तो आप क्या बोलते हो, मे आई, कैन आई, कुड आई, इस तरीके से। तो जब आप फॉर्मली किसी से परमिशन लेते हो तो आप मे आई बोरो यूर पेन, आप किसी फ्रेंड से या किसी अननोन पर्सन से आप उससे उसका पेन मांग रहे हो, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, परमिशन ले रहे हो, तो आप उससे क्या बोलोगे, मे आई करके पूछोगे। कैन जो होता है थोड़ा इनफॉर्मल होता है, ठीक है, ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, किसी और के साथ यूज़ कर सकते हो। कैन आई स्विच ऑफ द टीवी, ठीक है, ये आप घर में भी यूज़ कर सकते हो। कुड जो होता है ये आप सजेशन मांगते हो, परमिशन मांगते हो जब आप पास्ट में कोई काम कर रहे होते हो या कर चुके होते हो, ठीक है, जैसे कि ही टोल्ड मी आई कुड लीव अर्ली, तो ये पास्ट में उसने मुझसे पूछा था कि क्या मैं जल्दी जा सकता हूँ। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। द फॉलोइंग टेबल शोज द मॉडल दैट एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मे, माइट, कैन, कुड indicates a possibility which is stronger than might. In order words, a good possibility. Might indicates a weak possibility. Example, my younger brother might win his match. Can indicates a general and occasional possibility. Example, I can go with you to see the match. It is used when there is a very weak possibility. Example, the girl is crying, she could be little injured. Example, father may be attending a meeting in his office today. Past tense of may. Example, I thought he might come, indicates a general and occasional possibility. Example, I can go with you to see the match. Past tense of can. Example, he said he could accompany us on our trip. Note, could is also used sometimes to suggest a very weak possibility in the future. Example, he could participate in the tournament tomorrow. पॉसिबिलिटी मतलब अगर आपको लगता है वो चीज़ होने वाली है या हो सकती है, ठीक है, आप श्योर नहीं होते हो, आप वहाँ पे पॉसिबिलिटी अपनी दर्शाते हो, तो यहाँ पे आप मे, माइट, कैन, कुड जैसे वर्ड जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। ये आपकी पॉसिबिलिटी को दर्शाते हैं कि आप कोई चीज़ फ्यूचर में करने वाले हो या होने वाली है या हुई थी। अब यहाँ पे नोट देने वाली बात है कि कुड जो होता है वो कभी कभी हम किसी चीज़ को सजेस्ट करने के लिए, कोई वीक पॉसिबिलिटी जो फ्यूचर में होने वाली है उसको सजेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि ही कुड पार्टिसिपेट इन द टूर्नामेंट टुमारो, तो आप श्योर नहीं है उसके बारे में, तो आप क्या बोल रहे हो कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है कल वाले टूर्नामेंट में। क्लियर है बच्चों। इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई जिसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। नाउ यूज ऑफ विल एंड शैल. Will and shall are used to suggest promise. Will is used with all persons while shall is used only with first person subject IV. However, when promise is suggested, we use will with first person subjects and shall with other subjects. Example, I will bring a ice perfume for you from London. My promise. B, you shall get a written gift. My promise to you. Since will is now used with all subject, the force of promise in will is missing. So we say, example, I promise to bring a nice perfume for you from London. Will and shall in their normal usage suggest intention and willingness. Example, I shall call you. Intention, I will call you. Intention, I will happily participate in the celebration. Willingness,
द यूज़ ऑफ शैल इज़ नॉट वेरी कॉमन नाउ। अब बच्चों विल और शैल के यूज़ के बारे में जान लेते हैं। विल और शैल के यूज़ हम तब करते हैं जब हम प्रॉमिस को सजेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी से प्रॉमिस करते हो कि मैं कल तुम्हारे लिए पेन लेके आऊँगा, गिफ्ट लेके आऊँगा, तो आप उससे क्या कर रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो, ठीक है। विल जो होता है कभी कभी हम सब्जेक्ट को भी दर्शाने के लिए या उसके साथ यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉमिस को क्या करने के लिए, फोर्स करने के लिए, ठीक है। विल और शैल जो होता है हम कभी कभी नॉर्मल किसी चीज़ को सजेस्ट करने के लिए, जैसे कि इंटेंशन है, विलिंगनेस है, इसको सजेस्ट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आई शैल कॉल यू, ये मेरी इंटेंशन है कि मैं तुम्हें कॉल करूँगा। आई विल कॉल यू, ये मेरी इंटेंशन है, यहाँ पे भी मेरी इंटेंशन आती है कि मैं तुम्हें कॉल करूँगा। आई विल हैप्पीली पार्टिसिपेट इन द सेलिब्रेशन, ये मेरी विलिंगनेस है कि मैं सेलिब्रेशन में क्या करूँगा, पार्ट करूँगा, मतलब मेरा मन है वहाँ पे पार्ट करने का। यूज़ ऑफ शैल जो होता है ये कॉमन नहीं है आजकल हम ज़्यादातर विल ही यूज़ करते हैं। शैल जो होता है हम कभी कभी यूज़ करते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द मॉडल्स दैट एक्सप्रेस प्रोहिबिशन मस्ट नॉट, ought not to, indicates that something should not be done because it is a rule. Example, you must not use your cell phone while driving, indicates that something should not be done because it is a duty. Example, you ought not to disturb whole clean. तो बच्चों प्रोहिबिशन के बारे में जान लेते हैं। मस्ट नॉट, आउट नॉट टू। मस्ट नॉट इंडिकेट करता है किसी चीज़ को जो कि क्या है आपको नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो क्या है, रूल है, ठीक है। आउट टू जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है कोई चीज़ को ये भी नहीं करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी में आ जाता है। तो इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे बच्चों छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जो आपको खुद से फिल करने हैं। नाउ रिक्वेस्ट, वुड, वोंट, कैन, कुड। Used to make a polite request, it is more polite than will. Example, would you drop me at Lawrence Road? Used to make a request, example, won't you have something to drink? Used to make an informal request, example, can I add some more sugar in coffee? Used to make a polite request, but it is uncertain whether it will be accepted. Example, mother, could you buy a watch for me, please? रिक्वेस्ट के बारे में जान लेते हैं। जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो तो आप वुड, वोंट, कैन, कुड ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करते हो। वुड जो होता है हम यूज़ करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जब हम किसी से पोलाइटली कुछ चीज़ पूछते हैं। वोंट जो होता है ये हम पूछते हैं किसी रिक्वेस्ट को बनाने के लिए, मेक करने के लिए। कैन जो होता है ये हम यूज़ करते हैं इनफॉर्मल रिक्वेस्ट को बनाने के लिए, ठीक है। कुड जो होता है ये हम पोलाइट रिक्वेस्ट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये अनसर्टेन होता है कि ये एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।